Good evening to all of you and good evening to students who are attending the class online. Now we are heading towards the second phase of gravitation, that is the concept of the buoyancy that I took in the last class, extending the same. But before extending the same session, I would like to ask certain question. What do you mean by buoyant force? Priyank, what is buoyant force? When a body is fully or fully immersed in a liquid, it experiences a upthrust that is known as buoyant force. To a certain extent, the answer is correct. But what is the definition of buoyant force? Anybody who is confident? Tushar, what is buoyant force? The upthrust force applied by the liquid in the opposition of the weight force of the object fully immersed in a liquid is known as the buoyant force. Any other? Let's start the discussion. Buoyant force. The upthrust exerted by the liquid onto an object, right, emerged in the same, is known as buoyant force. What are the factors influencing the buoyant force? Kavita, factors influencing the buoyant force. आदि कौन कौन से फैक्टर्स जो बाइंड फोर्स को अफेक्ट करते हैं? Didn't study at home ना? कोई हिस्ट्री थोड़ी ना जो याद करनी पड़ती, तो साइंस है. टेल मी. नो आइडिया? Then you should not have any right to attend the session. The last chance है ये, the last chance. In the next session, if you are not able to give the answer of my class, you will not be allowed to attend the session. This is confirmed. Anshul, factors influencing the buoyant force. You don't pick up book at home, नहीं? I know it. किताब उठाकर नहीं देखते हो. तुम्हारे लिए भी लास्ट चांस है, उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास. नो, नॉट एट ऑल. यश, गलत आंसर है. वास किसका, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम. तूने भी किताब उठा के नहीं देखी, गारंटेड. यू नॉट पिक द बुक एट ऑल. सच कह रहा हूँ ना, एडमिट टू इट. कम से कम अपनी गलती के लिए ऑनेस्ट तो रहो. हाँ, Volume of the object, density of the fluid, and acceleration due to the. excellent answer. Very good. Those who didn't be able to put up the answer right now should be absolutely aware. मैंने पहले भी समझाया. To revise the content, otherwise it's sheer wastage of everything. Don't force me, Adi. Should I tell the father that it would be better that I will give his exam? Should I say it? कहूँ घर पे? समझ में नहीं आ रहा तो बता. मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा तो बता. आता है या नहीं? तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? खेतों में भेज देते हैं पापा काम करने के लिए. हैं, हल चलाना पड़ता है. बोलो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. मोशन की वैल्यू है बेटा, रेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में. यू विल हैव टू वर्क. इट्स लास्ट वार्निंग टू यू, यू विल हैव टू स्टडी. ठीक है? इन द लास्ट क्लास वी लेफ्ट द सेशन at the definition of Archimedes principle. नहीं, Archimedes principle states that when an object completely or partially emerged in a liquid, it experiences a buoyant force, right, which is equal to the weight of the liquid displaced by it. Is that clear? ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर. Then we also came across about the application of Archimedes principle, right? 4 important हमने उसकी applications को देखा था. आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन.
प्रिंसिपल फ्लोटेशन का मतलब है वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर एक ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में तैर सकता है, सिंक नहीं करेगा। फ्लोटेशन का मतलब तो तैरना ही होता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे की डेफिनेशन पे जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बायंसी। प्लीज गेट बंद करो और डिस्टर्ब मत करो क्लास को, ये पहले बाद में क्या करो आप इसे। The very first thing is when an object, right, is put into any liquid, right? If it floats, so there are two possibilities. One, a part of it will float, will enter into the liquid and then the object will float. One of the best example is the floating of boat, ships. Part of the boat or ships are definitely into the water, still it floats. एक condition ये होगी ना. The second, there is every possibility that the object will rise onto the water or onto the liquid and then float. मतलब उसका जो बॉटम फेज है वो भी लिक्विड के ऊपर है, ए पार्ट ऑफ इट इनटू द लिक्विड नहीं है, ए बॉटम ऑफ इट इज आल्सो अवेलेबल एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड थर्ड इट विल सिंक, राइट. तो द वेरी फर्स्ट व्हेन ए पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, इज इनटू द लिक्विड and is floating onto the surface of it is possible only when the weight of the object, right, and the upthrust experienced by it. What should be the relation between them in terms of the magnitude? Upthrust, opposite. Which one should be greater in order to have this condition? Upthrust. The buoyant force experienced by the object, right, should be equal to the buoyant force experienced by the object, should be equal to the weight of the object. Then what will happen? एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आपने ऊपर छोड़ दिया उसको, अब वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर तैर रहा है, तो वो तैर क्यों रहा है? Because the liquid is exerting the force in the upward direction onto it. If the force exerted by the liquid onto it is found to be greater than the weight of the object, obviously the object will float. मान लिया 30 न्यूटन जो है वेट है और अब थ्रस्ट आ रहा है 50 न्यूटन, तो होगा क्या? Obviously the thrust will take the object and is available onto the free surface and then it floats. If the buoyant force is greater than the weight of the object, then in that case the object will rise up and then start floating onto the surface of the liquid, right? If the weight of the object is equal to the buoyant force, still it will float. पहला कंडीशन मैंने क्या कहा था? If the buoyant force is greater than the weight, then the object will rise and then start flowing onto the surface of the liquid. क्या ये बात समझ में आ गई? मान लिया वेट भी 50 न्यूटन है, buoyant force भी 50 न्यूटन है, then both the opposing forces are equal to one another, still makes the object to float on the surface of the liquid. A part of it definitely would remain be in the liquid itself, then still it will float. But if the weight of the object is greater than the buoyant force, अब उल्टा ले लेते हैं, weight है 50 न्यूटन, buoyant force है 30 न्यूटन, it's not possible for the buoyant force to withhold the object within the same. Obviously it will sink and get settled down at the bottom of the container. तो तीनों बातें समझ में आ गई. इन तीनों को अगर हम समराइज करें तो हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कुछ इस तरीके से कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, राइट, इफ इट्स वेट is equal to the weight of the liquid displaced by it. If its weight is equal to what? Weight of the liquid displaced by it. Weight of the liquid displaced by it is also equal to what? Is also equal to what? Buoyant force. देखो क्या कहा था मैंने? An object completely or partially emerged, it experiences a buoyant force. It experiences a buoyant force, and that buoyant force is equal to weight of the liquid displaced by it. So weight of the liquid displaced by it is nothing but talking about the buoyant force. An object will float on the surface of the liquid, right, if its weight is equal to weight of the object displaced by it, right. मान लिया 5 न्यूटन वेट है उसका और पानी भी उसने कितना डिस्प्लेस कर दिया? 5 न्यूटन ही. Is that clear? Then in that case
that 5 Newton of the water or on the liquid being displaced is equal to the bind force experienced by it. ये बात समझ में आ गई? लिखो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट principle of flotation states that an object will float on the surface of the liquid. An object will float on the surface of the liquid float on the surface of the object, on the surface of the liquid, sorry, if its weight is equal to the weight of the liquid displaced by it, is equal to the weight of the liquid displaced by it. Am I visible? Please देखना बेटा कैमरे में. Clear है? This is about the principle of flotation, right? Now I'll consider an example. Let us consider a boat. बहुत important हम एक discussion करने जा रहे हैं. Let's consider a boat. This particular example is basically the practical example to give the importance about the volume of the object influencing the bind force. हम जानते हैं ना बाइंड फोर्स किन दो बातों में डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पहले इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. लेट अस कंसीडर ए बोट हुज कैपेसिटी टू पिक अप ए टोटल नंबर ऑफ पर्संस 25, राइट? इफ 25 देयर वुड बी ए 26 पर्सन इनटू द बोट, ऑब्वियसली द बोट विल सिंक इनटू द रिवर, राइट? सो लेट्स कंसीडर 5 पर्सन, राइट, एंटर इनटू द सेम बोट. Obviously, the moment it happens, let us consider initially there is no person in the boat, right? A very less part of it would be into the water. Most of the part of the boat would be above the water itself, right or not? Now let us consider one person enters into it, a little bit depression occurs. Let us consider 5 person enter into it, more depression occurs. More depression, a part of the boat more depressed into the water is nothing but more volume of the boat, right, now enters into the water, responsible to increase the buoyant force, right, needed to counterbalance the weight of the average weight of the boat itself. Counterbalance का मतलब क्या है? When there is a depression of the boat into the water is keep on taking place, that means the volume of the object into the water is also keep on increasing, and increase in the volume creates buoyant force. Increase in the volume in turn creates increase in the buoyant force required to balance the boat into the water, right or not? Required to balance the boat matlab required to take the boat remain be floating onto the surface of the liquid, though its part is available within the liquid. Now 10 more persons added into it. Now a total of 15 persons are entered into the boat. More depression occurs. More amount of buoyant force is being exerted by the water in order to counterbalance what? In order to counterbalance the weight, so that the boat should not sink. And now let's consider 25th person enter into the boat. If 25th person enter into the boat, what will happen? Right? The moment it happens, almost the entire ship now touches the top of the entire ship, now almost touches the free surface of the water. That means almost 99% of the volume of the boat now within the water, and is the stage, is the condition at which the water has exerted its all buoyant force onto the boat so as to prevent its sinking, right? The moment 26th person enter into it, the boat will definitely sink, because it's not possible for the liquid to exert the more required amount of buoyant force in order to prevent the sinking of the boat. So what this example actually
provide us in terms of the information? It provides us the information about the significance of the volume of the object, significance, importance of the volume of the object. इस पूरे एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा? That it is the volume of the object held responsible to increase the buoyant force experienced by it. Clear? Right? Increase in the volume of the object makes the liquid to exert more amount or equivalent amount of the increase in buoyant force. क्या ये बात क्लियर है? दूसरा फैक्टर हमने देखा था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. You must have seen the cork which is made up of wood. You put it onto the surface of water, it will float or not? Right? Why it will float? Because the density of the cork is less than the density of the water. यानी कि दूसरी बात हमें जो सामने आई वो ये भी, अगर हम प्रिंसिपल फ्लोटेशन की बात करें, एनी ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज फाउंड टू बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अंडर इन्वेस्टिगेशन. अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल इट फ्लोट और सिंक? इट विल सिंक. ऑब्वियसली इट विल सिंक. जैसे आयरन है, आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, कम है? बहुत ज्यादा है. द मोमेंट यू प्लेस एन iron piece, it will sink, it has to sink, right? Stones also, if put onto the surface of water, it will sink, except the stones which are available at the Rameshwaram. Have you heard about the Rameshwaram? That there are certain number of stones, right, at the Rameshwaram place, right? हमारा सबसे important जो है वो वहां पर एक तीर्थ माना जाता है हमारे लिए. What over there Rameshwaram, that there are certain accumulation of stones, very heavy stones, which are floating onto the surface of ocean instead of dipping into the same. वो वहां पर float कर रहे हैं. How does it happens? क्या है वो हम कभी बाद में देखेंगे. Certain exceptions are there. This is also an exception. You must have heard about the Rama, right? Has crossed the ocean so as to reach to the Sri Lanka, right? So during that particular path, the path being constructed with the help of small and the large amount of animals along with the monkeys, right? And they have done nothing but put up the small or the heavy stones into the ocean, and all these stones gets accumulated and created a path so as to join the India with respect to the Sri Lanka. And all these stones were at that phase of time considered to be floating onto the surface of the lake. Absolutely overruled the Archimedes principle. But practically it is there, still it is there. There is certain number of stones are available, very heavy stones are available, which are still floating onto the surface of water, right, at the ocean level in Rameshwaram. So this is a different part, लेकिन एक contemporary एक example था, उसे छोड़कर the density of the object if found to be greater than the density of the liquid under investigation, obviously it will sink. Now is at the same time wood, if you place onto the surface of the water, will it float or sink? A plain piece of the wood, if you place it onto the surface of water, will it float or sink? It will float. Why? Because the density of the wood is less than the density of the water. If you place the iron onto the free surface of the mercury, will it float or sink? It will float. Why? Because the density of the mercury is very high as compared to the density of the iron, even the glass also. Right? There is a substance known as tar, TAR. Right? The density of the tar is exactly equal to the density of the water. In that case, the entire tar, right, will be absolutely dipped into the water and then float. Entire surface area, entire volume, in fact, of the tar would remain be into the water and still it will be floating. Not even a single person would be outside the liquid. And it happens with those substances where the density of the object is exactly equal to the density of the liquid. क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हमारा एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेंसिटी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in order to have the condition for the flotation. Right? Now, can you tell me the answer that the ships, submarines, right? Submarines still, but if I am talking about the very big ships, right? They are heavy, they are made up of metals.
right? Steels. And they have the power to accumulate even 10,000 people within the same. एक पूरा शहर बसता है ना. You must have heard about the Titanic. So very giant ships are available who can float onto the surface of ocean. वो डूबती क्यों नहीं है? Why? ये बड़ा important question है. ये वो ना वो मतलब जगह बढ़ा देते ताकि प्रेशर कम हो. कुछ हद तक के लिए. हाँ. डेंसिटी डिक्रीज करेगा. हाँ, ऑलमोस्ट 90%. करेक्ट. हाँ तुषार. सर मेरा क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर सबमरीन जो होती हैं सर उनमें भी तो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं तो वो क्यों सिंक करती हैं? वो कराया जाता है उन्हें. दे आर बेसिकली मेंट टू डू सो. सबमरीन्स तो बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो पानी के अंदर रहे. ऊपर रहेंगे तो उसका फायदा ही क्या हुआ? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सबमरीन्स? इज टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमीज. सबमरीन्स का काम ही क्या होता है कि अंदर पानी के रहकर ये देखना कि अंदर से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा किसी दूसरे देश का. सबमरीन्स विल इजीली डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ सोनार रेज. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये हम पढ़ेंगे साउंड वाले चैप्टर के अंदर. वो कैसे होगा हम बाद में देखेंगे आगे. राइट. लेकिन हम चाहें तो उसे फ्री सरफेस पे फ्लोट भी करा सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. दिस इज आल्सो वेरी मच पॉसिबल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो होता है वहाँ. सिंक करने में भी मतलब वो ऐसा क्या करते हैं कि सिंक करते हैं? उसके लिए आपको उसका इंजीनियर बनना पड़ेगा. राइट. ये वाक से क्वेश्चन ऑफ ये हैं. ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है. लखमीर सिंह में जो आंसर है वो क्या है? हाँ तुमसे गोविंद बताओ क्या होगा आंसर. A ship or anything which is considered to be a very giant ship etc. is basically a hollow system of metal or steels. Hollow system. Hollow piece होता है या नहीं? Hollow का मतलब क्या होगा? नीचे से क्या होता है? उसकी शेप इस तरीके से होती है ना, यानी कि नीचे से खाली होता है वो. द बॉटम ऑफ द शिप इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी more than 80% absolutely vacant so that the air can envelop into it. वो जो खाली सरफेस है उसका, वेकेंट सरफेस है शिप का, एट द बॉटम ऑफ इट obviously gets filled with the air and the density of the air is definitely less than the density of water. Right? The ship is so designed that the bottom of it, right, should have enough vacant space in order to envelop the air so that the overall density of the ship becomes less than the density of the ocean water or the river also. If the ship happens to be floating onto the surface of river, तो obviously it will float, right or not? तो नीचे से उसको काफी स्पेस उसका खाली रखा जाता है कि हवा आके उसमें आ जाए, और हवा की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है. तो ओवरऑल एवरेज डेंसिटी पूरी शिप की डिजाइनिंग कुछ ऐसे की जाती है. राइट. Followed the principle known as Archimedes principle. Designing is done in such a way that the overall density of the entire structure reduces, right, with respect to the density of the ocean water or the river water, and hence it will float. समझ में आ गया यश? राइट. तो इस तरीके से आई थिंक सो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई कि क्यों होता है, किस तरीके से रहता है. एंड हेंस वी आर एट द एंड ऑफ buoyancy. We started the concept of buoyancy with the meaning of buoyancy, buoyant force, factors influencing the buoyant force, cause of buoyancy, यानी कि cause of buoyant force, then Archimedes principle, right, then principle of flotation आज के सेशन में भी हमने देखा. And after the principle of flotation, we also came across, right, about the importance of the volume of the object and the density of the liquid under investigation, right, for the condition known as flotation of an object onto the surface of it. Right. अब हम जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखने वाले हैं, दैट इज नोन एज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो मैं बता ही चुका हूं. डेंसिटी ऑफ ए, देखो दो बातें होती हैं, डिफाइंड डेंसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी. What do you mean by density? Density is nothing but it's a measure of the total quantity of the substance available in the given volume. Total quantity of the substance available in the given volume. Is that clear? There are metals are heavy. Why? Because their density are heavy. Density heavy का मतलब क्या हुआ? The density is considered to be approximately 50 gram per cubic centimeter.
पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितना 50 ग्राम. यू नो अबाउट 1 सेंटीमीटर. स्केल देखा ना 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ ले लो, 1 सेंटीमीटर हाइट ले लो. क्यूब बन गया नहीं. वो छोटे से क्यूब में कितना ग्राम आ गया? 50 ग्राम. 50 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 50 ग्राम आ जाएगा. कितना होता है? इतना तो होता है. अगर इसका इतना बड़ा शेप ले लें तो हम, तो दिस 1 मल्टीप्लाइड विद n नंबर ऑफ सच क्यूब्स एंड हेंस द एंटायर मेटल बिकम्स हैवी और नॉट. जो कि नॉन मेटल हल्के होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है. किसी की 7 ग्राम, 3 ग्राम, 0.01 ग्राम भी होती है. उतना लाइट होता है. तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज नथिंग बट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय द वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. मास का क्या होता है? किलोग्राम, राइट. और वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक मीटर. तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज द डेंसिटी, राइट. सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो इट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज ए टेंडेंसी टू एनवेलप 50 किलोग्राम ऑफ मास इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ इट्स वॉल्यूम. लेंथ कितनी? 1 मीटर. ब्रेड्थ कितनी? 1 मीटर. हाइट कितनी? 1 मीटर. बंद हो गया, डब्बा बन गया एक. उसके अंदर कितना मैक्सिमम मास आ सकता है? 50 किलोग्राम. तो दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी कुछ बिल्कुल अलग चीज है. रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो डिनोटेड एज आरडी, कैपिटल आरडी. Relative density of the substance is nothing but the density of the substance to the density of the water. Relative density of a substance is the density of the substance to the density of water. It means what? Relative density is nothing but it is simply the comparison of the density of the substance with respect to the density of water. Right? इस तरीके से देखिए, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हैं, किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं? किसके साथ? पानी के साथ. तो हम वहां वर्ड क्या यूज करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. क्लियर है? डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्लियर है या नहीं? ये हाँ, प्लीज कोई कुछ उतारिए नहीं. यही देखिए, MS डिवाइड बाई VS इंटू VW डिवाइड बाई MW. ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं इसमें? अब दोनों के वॉल्यूम को अगर मैं बराबर ले लूं तो ये और ये कैंसिल हो सकता है नहीं. तो आएगा क्या? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. जितना ये मास लिया है आपने एक सब्सटेंस का, उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका होना चाहिए? पानी का होना चाहिए. तो उसमें आप कंपैरिजन करते हैं. इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स प्योरली ए नंबर. अगर सपोज रिलेटिव डेंसिटी, अब हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर सपोज किसी रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की 10.3 है, इट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट इज 10.3 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. राइट? क्या बेटा? हाँ, इसे दोबारा बताता हूँ अगर नहीं आया. कैसे नाइस कि आपने मुझसे दोबारा पूछा. आप ये देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगी? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. तो ये यूं का यूं आ गया. और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? मास ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो जब हम इसे ऐसे लिखेंगे MS डिवाइड बाई VS, अब ये VW ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई MW नीचे ही रहेगा. अरे भाई 5/7 डिवाइडेड बाई 8/7 क्या होगा? 5/7.
इंटू 7/8, 7 से 7 कट गया या नहीं? वही तो हुआ है। अब इन दोनों को अगर मैं काट दूं, कैंसिल कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वॉल्यूम बराबर हैं, तभी तो कैंसिल हो सकता है, राइट? तो फिर बचेगा क्या? MS/MW, वही तो लिखा है मैंने, दैट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। मान लिया कि किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 10.3 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट, देखो रिलेटिव डेंसिटी मैंने क्या ले लिया? 10.3। इज दैट क्लियर? और रिलेटिव डेंसिटी हमने 10.3 लिया, पानी की डेंसिटी आपको गिवन है वाटर की, दैट इज गिवन टू अस एज, मैंने क्या लिया है? 1 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम, राइट, पर क्यूबिक मीटर। यानी कि 1000 किलोग्राम पानी किसने टैंक में आ सकता है जिसका वॉल्यूम कितना हो? 1 क्यूबिक मीटर, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर। अब ये टैंक बन गया नहीं, उसमें आप बाल्टी से पानी भर दो तो कितना पानी उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा अप टू द ब्रिम, ऊपर तक? 1000 किलोग्राम मास का पानी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ टैंक के अंदर आराम से एनवेलप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10। तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई भाई पानी की? 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की कितनी है? 10.3। रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की है 10.3 और पानी की डेंसिटी है 10⁻3। आपसे पूछा गया व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ये निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होगी? 10.3 मल्टीप्लाइड विद 10⁻3 और नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कोई है इसके अंदर कुछ? क्वेश्चन क्या था? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 10.3, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस गिवन है, कितनी गिवन है? 10.3। आपको क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 10.3, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस वो तो निकालना है। मान लिया वो x है, x डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10⁻3। तो ये ds ले लिया ना मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 इंटू 10.3 इंटू 10⁻3 हो गया ना। तो इट मीन्स व्हाट? दैट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस is 10.3 times as compared to the density of the water। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की है 13.6, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इस सब्सटेंस इज 13.6 रिलेटिव डेंसिटी है। आंसर आ जाए तो चुप रहना, सिर्फ हाथ खड़ा करना। Relative density of a substance is 13.6. What is its density? What is the density of this substance? Relative density मैंने आपको दे दी, मैं आपसे पूछ कह रहा हूं what is the density of the substance? Just show it to me, like very specific. Correct, हाँ नहीं बता दे, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबरा मत, गलत भी आता है कोई बात नहीं, कोई टेस्ट थोड़ा ना हो रहा है। बताओ 10300। मैं तो कुछ ये मैंने आपको कहा है डेंसिटी एक सब्सटेंस की, रिलेटिव डेंसिटी एक सब्सटेंस की 13.6 है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाँ करेक्ट आंसर, वेरी गुड, गुड आर यू, गुड आंसर। हाँ 13.6 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? बस एक्सीलेंट आंसर, सही तो कह रहे हो, समझ में आ गया नहीं? यस यही आया आंसर, पक्का, ग्रेट जॉब। ठीक है, और यह आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, राइट? नाउ अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया तो तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया है।
वाटर की उतनी ही रहेगी 10.3, क्योंकि वाटर तो वाटर से ही कंपेयर होगा ना. Is it readable to you or not? क्या ये अभी और बड़ा करूं? समझ में आ गया? ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों के आंसर निकाल के अपने पास रखो. मैं आप सभी को और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कोई बुक ना देखें. चारों के आंसर अपनी नोटबुक पे लिखो. अभी 2 मिनट में मैं पूछ रहा हूं, 2 मिनट का टाइम. हाँ, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर. प्लीज डू इट. यू हैव 2 मिनट्स. नहीं जरूरी ढूंढना है, ग्राम में भी हो सकता है. पानी की जो है ग्राम में क्या होगी डेंसिटी? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये हिंट दे दिया. अरे 10 टू पावर 3 किलोग्राम 1 क्यूबिक मीटर में, तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में. पानी की डेंसिटी ग्राम में बता रहा हूं मैं तुम्हें. कितनी? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और मीटर में कितनी होती है? 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये बात समझ में आ गई? That's what you need to think. The importance of this question lies in the second part. What will be the density of this solid? मास गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, तो क्या करेंगे? पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 3 कितना? 500 डिवाइड बाई 350. यही किया है या नहीं? शिवा क्लियर है? फर्स्ट का आंसर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज व्हाट? प्रियांक समझेगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई व्हाट? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम. मास कितना है? 500 डिवाइड बाई 350. आ गया आंसर फर्स्ट का. दूसरा पूछ रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. जब आप इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो पानी हटेगा या नहीं अपनी जगह से? तो कितना मास, कितना ग्राम पानी अपनी जगह से हट गया, ये निकालना है. हिंट दे रहा हूं, डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. लास्ट 1 मिनट. प्लीज देखिए,
as the question is displaying in front of you, the answer for the first part is density. इसे फ्रीज ही रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन दिखना जरूरी है, आंसर तो मैं वैसे ही बता दूंगा. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 350. कितना आ गया जरा डिवाइड करके बताना. 10/7 को भी डेसिमल में बदलना. 1.4 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये आ गया ना फर्स्ट का आंसर. नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. यहां देखो, ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना. मास ऑफ द वाटर, द मोमेंट सॉलिड इज डिप्ड इनटू द लिक्विड, ऑब्वियसली इट विल टेक ए पार्ट ऑफ द वाटर. It enters into the water by displacing equal volume of water. The volume of the substance, volume of the substance कितना है 350. Volume of the substance कितना गिवन है 350. 350 cubic centimeter of this solid once enter into the water, will it displace some other volume of water, the same volume of water? अरे ये टब है, उसमें आपने राइट मग को डाला या एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डाला जो कि अंदर थोड़ा सा उसका हिस्सा अंदर गया या वो कंप्लीटली अंदर गया, तो इट विल डिस्प्लेस ए पार्ट ऑफ इट. इफ इट एंटर्स इनटू द वाटर, इट डिस्प्लेसेस सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर और नॉट. अरे पानी अपनी जगह से हटेगा तभी तो अंदर आएगा, राइट. The object will displace water. The object will displace water or any liquid whose volume must be equal to the volume of the object itself. 350 क्यूबिक सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पानी में चला गया, तो क्या वो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर को पानी को हटाएगा? The dense, are you getting my point what I am saying? That the volume of the object that enters into the liquid must be equal to the volume of the water displaced by it or not. जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम पानी का अलग हुआ या नहीं, राइट और नॉट. तो व्हाट आई वांट टू से दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द वाटर must be equal to the volume of water being displaced. किसी को उसमें कोई डाउट है? तो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है ना, तो पानी भी कितना डिस्प्लेस हुआ 350 क्यूबिक सेंटीमीटर. और हमें निकालना क्या है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस. हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर तो निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 350 और डेंसिटी पानी की कितनी होती है 1 ग्राम. तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी कितना आ गया 350 ग्राम. तो कितना पानी अपनी जगह से छोड़ के हट गया 350 ग्राम. क्या ये बात क्लियर है? इसमें इस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, राइट, which enters into the any liquid must displaces the same volume of the liquid. It must displaces the same volume of the liquid. वो जितनी जगह लेगा उतना ही पानी हटा देगा, उतना ही पानी गया या किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम वो वहां से हटा देगा. द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. बस इतनी बात जाननी थी. डेंसिटी ऑफ वाटर तो आसान है निकालना, मास ऑफ वाटर जो हमें निकालना है. वॉल्यूम ऑफ वाटर 350 आ गया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था उसका भी वॉल्यूम कितना था 350. तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, मास कितना गया 350. तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड क्या फार्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बताओ रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी उसकी. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितनी है डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है. डेंसिटी ऑफ वाटर 10 है.
1. 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की कितनी आ गई? 1.4. दैट मीन्स दिस सॉलिड इज 1.4 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू वाटर. क्या ये बात क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव डेंसिटी की कितनी आ गई? 1.4. राइट. उसकी डेंसिटी भी कितनी थी? 1.4. विल दिस ऑब्जेक्ट सिंक? अगर पता होगा तो हाँ भरना, हाथ खड़ा करना, बोलना मत आंसर. विल दिस ऑब्जेक्ट विल सिंक? द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1.4. हाँ, इट विल. व्हाई? हाँ, वाटर की कितनी है? एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. 1.4 is the density of the solid. Obviously the density of the solid is found to be greater than the density of water and hence the object has to sink. ये चारों पार्ट समझ में आ गई. एडमेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है. अब इसके ऊपर कुछ एडवांस लेवल की बड़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे. राइट. अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्रेशर का फार्मूला H रो G क्यों होता है. बताया था ना मैंने. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या होता है? M इंटू जी. एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नाउ प्रेशर विच इज mg डिवाइडेड बाई m स्क्वायर. राइट. अब इसे हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई विल गिव यू 2 मिनट्स. एक काम करता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो. मास को कैपिटल कर दिया मैंने. ये मीटर स्क्वायर है, ये मास है. आप इधर देखिए, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइड बाई वी एम स्क्वायर. राइट. अरे वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबिक मीटर. राइट. इंटू जी डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर. ये कट गया तो प्रेशर क्या आ गया? रो मीटर जी. मीटर क्या हो गया? हाइट. राइट. लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में. तो मीटर कैन बी रिप्लेस एज हाइट, रो एंड जी. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. राइट. इसके ऊपर और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. विल डू देम वंस द सिलेबस वुड बी ओवर. राइट. सो कैन यू शो मी द एनसीईआरटी राइट नाउ? In the NCERT 19th, 20th, 21st and 22nd, all the 4 questions are already being done by us. Right? इन चारों क्वेश्चंस को आपने देख लेना है. राइट. चारों के चारों आज ही मैंने 3 तो मैंने आज ही डिस्कस कर दिए हैं और दूसरा उस क्यूबॉइड से रिलेटेड था. याद ना, क्यूबॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. उसकी क्लास आपने अटेंड कर ली थी ना मेरी वीडियो की. सो दैट्स इट फॉर टुडे. विल बी मीटिंग द नेक्स्ट क्लास.